Class 10 Mathematics. I am R.S. Prasad sir. Today your chapter 2 and part 1, that is the linear equation in two variables. Exercise 1. Let us start. What will be your exercise? So example 1, you can see here. Salma said to Rima. Salma ने रीमा से कहा, क्या कहा? My number is twice more than your number and the sum of our number is 14. So इसमें can you find our numbers? Numbers को find कर सकते हैं, तो बिल्कुल find कर सकते हैं. How can find this one? Let the Salma number be X and Rima number be Y. So according to question, my number means Salma number is twice more than, so X is equal to 2Y. It is given. So X minus 2Y equal to 0. That one is your equation first. And the sum is 14. So you can say X plus Y is equal to 14. So this your equation second. Now subtract करना है second to first. Subtract equation second by first equation. चलिए देखिए, तो पहले फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं. x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 और यहां से कितना हो जाएगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 14. सबट्रैक्ट कर लीजिए, चेंज देयर साइन, साइन चेंज रहेंगे तो ये x कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे माइनस का 3y इक्वल टू माइनस 14. माइनस विल बी कैंसिल आउट. So y is equal to 14 by 3. Y 14 by 3 आ गया. We can find the x. So the value of y put in equation first में रख दीजिए. So x minus 2 into 14 by 3 will be equal to 0. So x minus 28 by 3 will be 0. So x equal to 28 by 3. That means Salma number is equal to 28 by 3 and the Rima number is equal to 14 by 3 and that one is your answer. इस तरह से हम इनकी लीनियर इक्वेशन बना करके सॉल्व कर सकते हैं. अब यहाँ एक और एग्जांपल 2 दिया हुआ है. देखो इस एग्जांपल में क्या है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल गिवन बिलो. ये गिवन बिलो है, सारा कुछ दिखाई दे रहा है. एंगल ए इज गिवन एज इट इज ओनली x डिग्री. एंगल बी इज गिवन एज x प्लस 40 डिग्री. ये आपका x डिग्री दिया हुआ है, ये x प्लस 40 है और ये x प्लस 20 है. तो यहां पर एंगल C is equal to x plus 20 degree. Now in triangle ABC, what will be number? Angle A plus angle B plus angle C will be equal to 180 degree. A is x, B is x plus 40 and C is x plus 20 will be equal to 180 degree. इसमें how many x? 3x हो गए. 3x प्लस ये 40 है, ये 20 है, तो 60 हो गया, इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो 3x विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री. सो 3x विल बी इक्वल टू, इट इज 120 डिग्री. सो x विल बी इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 3. सो 3 4 जा 12. सो x becomes 40 degree. Now we can find all the values of angles. So first of all, angle A, that is the x and it is your 40 degree. Now angle B, it is your x plus 40, that is 40 plus 40. That means it is equal to 80 degree. Now angle C is equal to
that is the x plus 20. So x plus 20, that means 40 plus 20. 40 plus 20, so it will be 60 degree. So these are the answer. Now this is a question. A bag contains 50 paisa coins. Find the number of coins in the bag if total money is in the bag is rupees 50. A bag contains 50 paisa coins. Find the number of coins in the total money given है. So you can write total money. It is given as rupees 50. And the one coin is equal to 50 paisa. So it will be 0.50 rupees. ये रुपीस में चेंज कर लेना इसको. सो नंबर ऑफ कॉइन्स निकाल लीजिए. नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू टोटल मनी. टोटल मनी 50 रुपीज है और कॉइन्स का कितना है 0.5. तो इसका डेसिमल रिमूव करेंगे, ऊपर 100 आ जाएगा. 0 कैंसिल टू 0 एंड 5 10 जा. सो 10 10 जा 100 कॉइन्स आ जाएंगे एंड दैट इज योर आंसर. ये इस तरह से हम आंसर निकाल सकते हैं बड़े इजिली. चलिए आगे देखते हैं. ये आपका सेकंड नंबर है. इफ वन ऑफ द इंटरनल एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 60 डिग्री. तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए. ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूं मैं. ये हो गया ए बी और सी. यहाँ सी पर जो एंगल राइट एंगल है दैट इज द 90 डिग्री. इफ वन ऑफ इंटरनल एंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 60 डिग्री, यानी ये एंगल आपका 60 डिग्री गिवन है एंगल ए. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर एंगल्स. तो ये आपके एंगल्स को फाइंड करने हैं. चलिए एंगल ए इज गिवन एज 60 डिग्री. एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री क्योंकि राइट एंगल है. और एंगल सी इक्वल टू एक्स. लेट कर ले रहे हैं एक्स. सो इन ट्रायंगल विच वन ABC, angle of A plus angle of B plus angle of C is equal to 180 डिग्री. एंगल A 60 डिग्री है, एंगल B 90 डिग्री है और एंगल C कितना है X है और यहाँ टोटल 180 डिग्री. सो X plus that one is the 150 degree is equal to 180 degree. So X will be equal to 180 minus 150 degree. So it will be 30 degree. So that one is your answer. Now come to the next, that is the third. If father's age is twice the age of his son, then what are their current age? Let son's age be X years and the father's age भी कितना हो जाएगा ट्वाइस द एज है तो 2x years. What are their current age? It has many infinite solutions. Because we can put any value of x, we can get the father's age. Son's age को हम कुछ भी ले लें और तो फादर्स की एज उसकी डबल हमें मिलनी चालू हो जाएगी. तो बहुत सारे इसमें सॉल्यूशंस हो जाएंगे. तो वी कांट डू अ फिक्स सॉल्यूशन. नाउ कम टू द एग्जांपल 3. देयर आर सम डियर्स एंड सम क्रेन्स इन द फॉरेस्ट. कुछ तो डियर है और क्या है कुछ क्रेन्स है. द टोटल नंबर ऑफ लेग्स इज 180 डिग्री. How many deers and how many cranes are there? So let number of deer is equal to x and number of cranes
दैट इज द y। तो टोटल नंबर ऑफ लेग्स, टोटल नंबर ऑफ लेग्स क्या होगा, डियर के होते हैं 4 लेग और क्रेन्स के होते हैं 2 लेग, और ये कितना है 180। सो हाउ मेनी डियर्स एंड हाउ मेनी क्रेन्स आर देयर, दैट मीन्स देयर इज अ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें x की वैल्यू रख करके y की वैल्यू कुछ भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस ऐसे ही रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं ग्राफिकल मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। ये ग्राफिकल मेथड दिया हुआ है, तो चलिए देखते हैं। पहले ये 4x प्लस 2y इक्वल टू 180 है, तो इसको लिख सकते हो 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 180। अब इसमें कितना करना है, y की वैल्यू निकाल दीजिए, तो 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 4x। So y will be equal to 180 minus 4x divided by 2, that is the 90 minus 2x। अब यहाँ पर x की वैल्यू रखनी चालू कर दी है, 10 रखी है, पहले 10 रखी है, तो यहाँ 10 रखते 20 हो जाएगा, 20 में से 90 जाएगा तो 70 बच जाएगा। ऐसे 20 रखेंगे तो 50 आ जाएगा, 30 रखेंगे तो 30 आ जाएगा, 40 रखेंगे तो 10 आ जाएगा। तो इसमें जो पॉइंट्स आएंगे वो पॉइंट्स यहाँ लिख दे रहा हूं मैं। 10 आ गया, 10 के साथ 70 है, 10 70 है। दूसरा पॉइंट कितना आ गया 20 और 50 है। थर्ड पॉइंट कितना आ गया 30 30, और फिफ्थ पॉइंट जो आ गया यानी कि नेक्स्ट वाला पॉइंट है ये 40 और 10। इस पॉइंट को देखो प्लॉट कहाँ गया, 10 और 70, 10 और 70 जरा चेक करिए कहाँ, 10 ये है 70 ये है, यानी ये वाला पॉइंट है आपको। यहाँ 10 70 यहाँ दिया हुआ है, इसके बाद जो है 20 50 ये वाला है, इसके बाद जो है 30 30 है वो ये है, और इसके बाद जो है 40 और 10 है वो ये वाला पॉइंट है, यानी ये पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको। इन सब के मिला करके एक लाइन ड्रॉ कर दी है। यहाँ पे देखो ध्यान से, एक लाइन ड्रॉ हो रही है। इस लाइन को ड्रॉ करके इस पे इक्वेशन जो है ये वाली लिखी गई है आपकी, जो हमने बनाई थी अभी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन दिखाई दे रही है आपको। चलिए इसके बाद जो सेकंड इक्वेशन को ही सिमिलरली कर लिया हमने। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन को क्या करा गया है, 2y इक्वल टू 120 माइनस एक्स है, सो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स इट इज 60 माइनस एक्स। अब इसमें x की वैल्यू फिर रख दिया, 10 रखा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 50 आ जाएगी, 20 रखा तो 40 आ जाएगी, 30 30 40 और 20। ये वाले पॉइंट यहाँ लिखा। पहले देखो कितना है यहाँ पे, इस वाले पॉइंट्स को चेक करो। पहले तो हमारे पास 10 50 है, सो 10 50 लिख दीजिए। दूसरा पॉइंट कितना है 20 40 है। थर्ड पॉइंट कितना है 30 30, और फोर्थ है आपका 40 20। चलिए इसमें देखते हैं, ये वाला पॉइंट जो है 50 10 50 10 और 50 ये वाला पॉइंट दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे ये पॉइंट दिखाई दिया है। इसके बाद कितना है 20 40 है, ये 20 40 वाला पॉइंट दिया हुआ है। इसके बाद 30 30 यहीं पर आ गया फिर से ये। इसके बाद नेक्स्ट आ रहा 40 और 10, तो 40 और 20 वाला, ये 40 और 20 वाला आपको दिखाई दे रहा है। ये पॉइंट दिए हुए हैं, इसको गोल कर देते हैं हर एक को। तो जितने भी होते हैं पॉइंट्स को लिखने के बाद इनको राउंड कर देते हैं। राउंड करके इन्होंने दिखा रखा पहले से ही, ये एग्जांपल है आपका दिया हुआ। अब इस लाइन को भी ड्रॉ कर दीजिए। तो जहां पर लाइन ऑफ यूनिट की इंटरसेक्शन पॉइंट आता है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट आया है, इसके कोऑर्डिनेट से इसका सॉल्यूशन होगा। यानी क्या हो गया इसका सॉल्यूशन, x की वैल्यू जो आ गई वो 30 आ गई, और y की वैल्यू भी 30 आ गई, यानी ये दोनों के दोनों इसके सॉल्यूशन हो गए, और यही आंसर हो गया। यू कैन राइट हियर आल्सो x इज इक्वल टू कितना 30 है, और y इज इक्वल टू भी 30 आ गया, तो यही आपका आंसर हो गया। यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसका आंसर होगा। यानी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का ग्राफिकल मेथड यही होता है, और इसी से हम सॉल्व करते हैं। एक और इक्वेशन देख लीजिए ग्राफिकल में। ये एग्जांपल 5 दिया, वो 4 था। x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, तो y निकाल लीजिए इससे। y इक्वल टू आ जाएगा 10 माइनस एक्स। तो 10 की यानी x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखी है, तो 9 हो जाएगा, 2 रखेंगे 8 आ जाएगा, इसी में रखना है हमें। 3 आ जाएगा, 7 4 है, 6 5 5 और 6 4 आ जाएगा। दूसरी इक्वेशन दी है y इक्वल टू एक्स प्लस 4, तो इसमें x की वैल्यू 1 2 3 4 5 रखने हैं, तो y की निकाल लेंगे, 5 6 7 8 9 10 आ जाएगा। तो सबसे पहले वाले के पॉइंट, इसके पॉइंट ले लेते हैं। इसके पॉइंट्स क्या क्या आ गए हैं, 1 9 आ गया है, 1 9 पहले वाला पॉइंट है। फिर दूसरा पॉइंट है 2 8, थर्ड पॉइंट देखो कितना है 3 7, फोर्थ पॉइंट देखो 4 6 है, फिफ्थ पॉइंट देखो 5 5 है, और इसके बाद कितना है 6 4 है।
तो 6 4 ये लिख दिया हमने 6 4। चलिए इसके पॉइंट को देख लेते हैं। 1 9 कहाँ पे है, देख लो ये 1 है और 9, वेयर इज द 1 9, 1 9 इज नॉट गिवन। 0 पर 10 गिवन है, चलिए यहाँ ले लेते हैं, 0 पर 10 दिखाया नहीं, 0 पर 10 मिल जाएगा, वो यहाँ पॉइंट है। इसके बाद देखिए 3 2 7 है, ये हमने 3 2 7 दे दिया यहाँ पे, ये है 3 2 7 पॉइंट हमारा। इसके बाद 5 पे 5 है, ये 5 पर 5 पॉइंट आ रहा है देखो। इसके बाद 6 पर 4, ऐसे करते हुए हमने पॉइंट ले लिया, इनको लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये वाली जो लाइन आई वो ये आई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ऐसी दूसरी इक्वेशन हमने जो दे रखी y बराबर x प्लस 4, तो ये y इक्वल टू x प्लस 4, ये वाली लाइन ड्रॉ करिए। इसमें ये पॉइंट्स हमने सारे प्लॉट करके दिखाएंगे, ये पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पॉइंट्स रखने पर वैल्यूज आई हैं। तो यहाँ पे देखिए 0 पे रखा नहीं है, 0 पे 4 आ जाएगा, 1 पर 5 है, इसके बाद 2 पर 6 आया है, इसके बाद 3 पर 7 है, और 4 पर 8 है, और 5 पर 9 है, और 6 पर 10 है। तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये जो दिखाई दे रहा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एंड y इक्वल टू 7 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे यही लिखा हुआ है, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन सो डिपिक्टिंग द इक्वेशन इज द सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन। ये इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, तो इसको आप लोग इजिली कर सकते हैं। अब इसमें कुछ बातें खास ध्यान रखनी है, ये खास बात है। When the lines for equations are parallel, then the two equations do not have any solution because the equations have no point is common. कोई भी पॉइंट इसमें कॉमन नहीं होगा, ये पैरेलल लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, कोई भी इसमें कॉमन पॉइंट नहीं होगा, इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होगा, सो या भी नो सॉल्यूशन। So you can write here no solution. चलिए अब देखते हैं, अब ये एक लाइन ओवरलैप कर रही है, तो ओवरलैप में मेनी इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। देखो व्हेन द लाइंस फॉर द टू इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट, दैट इज दे लाइज ओवर वन अनदर, then the equation have infinite number of solution because in this situation there are infinite points common to the two lines. इन दोनों में कॉमन लाइन में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट लाइन्स होंगे, तो इसको आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहेंगे। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ये ग्राफिकल मेथड है सॉल्व करने का। चलिए एग्जांपल 9 देखते हैं। There are some rabbits and some birds in a small cave and the number of heads is 35 and the number of feet is 98. Find the number of birds and rabbits. तो लेट कर लेंगे। Rabbit and birds है, तो चलिए देखते हैं small caves। तो let number of rabbit be x and number of क्या है ये birds by y। चलिए देखिए heads is 35, द नंबर ऑफ हेड्स तो दोनों के एक ही एक होंगे, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 35। इट्स योर इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करें, द नंबर ऑफ फीट्स 98, 98 फीट कितने हो जाएंगे, रैबिट के तो 4 फीट होते हैं, तो 4x हो जाएगा, और बर्ड्स के 2 फीट होंगे तो 2y हो जाएगा, और ये कितना हो गया 98। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई है। इन दोनों को सॉल्व करना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इसको मल्टीप्लाई 2 से करिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। देखिए कैसे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y और 35 टू जा 70। नीचे अपनी इक्वेशन लिख दीजिए 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 98। जरा माइनस कर लेते हैं इनको, ये कैंसिल हो जाएगा, ये y कैंसिल हो जाएगा, यहां से माइनस का 2x बच जाएगा, और यहाँ कितना बच जाए देख लिया 8 तो st रह जाएगा, और 9 माइनस 7 दैट इज 2। अब यहां से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सो x की वैल्यू आ जाएगी 28 डिवाइडेड बाई 2, सो दैट वन इज द 14, इट इज 14। सो x इज इक्वल टू 14। अब क्या करना है, x की वैल्यू पुट कर दीजिए किसी एक में, द वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट,
फर्स्ट में रखिए, x की वैल्यू कितनी है 14 है, प्लस y इज इक्वल टू 35, सो y विल बी 35 माइनस 14, सो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 माइनस 4 दैट इज 1 एंड यहाँ से बचा 3, 3 माइनस 1 यानी 2, 21। तो इसमें जो बताना था वो नंबर ऑफ रैबिट्स कितना हो गया, नंबर ऑफ रैबिट इज इक्वल टू 14 रैबिट हुए और नंबर ऑफ बर्ड्स दैट इज द 21। ये आपका आंसर हो गया। इजिली कर लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए एग्जाम्पल 10 की तरफ भी बढ़ते हैं। रीचा एंड नैना हैड सम टॉफीज, इनके पास कुछ टॉफी है। इफ रीचा गिव्स 30 टॉफी टू नैना, देन नैना विल हैव ट्वाइस टाइम्स एज मेनी टॉफी एज रीचा। चलिए पहले इसको देख लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट रीचा हैज नंबर ऑफ टॉफी बी एक्स एंड सेकेंड वन कौन है, नैना, एंड नैना हैज नंबर ऑफ टॉफीज बी वाई। चलिए एक्स और वाई हमने ले लिया। अब इसमें देखो क्या करना है, एक्स और वाई को ऐसे लिख लेते हैं हम लोग। अब पढ़ना चालू करते हैं। रीचा गिव्स 30 टॉफी टू नैना, इसने 30 टॉफी नैना को दे दिया, तो यहां तो प्लस हो जाएगा 30, ये 30 प्लस हो जाएगा, लेकिन यहां 30 माइनस हो जाएगा। नैना विल हैव ट्वाइस टाइम एज टॉफी एज रीचा, रीचा के पास जितनी है उसका ये ट्वाइस हो जाता है। जरा मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2x माइनस हो जाएगा 60 इज इक्वल टू y प्लस 30 हो जाएगा। कितना आ जाएगा ये हो गया 2x माइनस y हो जाएगा, इधर जाके 60 और प्लस 30 हो जाएगा, सो इट इज 2x माइनस y इज इक्वल टू 90। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। नाउ कम टू द इफ नैना गिव्स 10 टॉफीज टू रीचा, अब की नैना जो है 10 टॉफीज रीचा को दे रही है, दैट मीन्स कि x प्लस 10 हो जाएगा यहाँ, और इधर क्या हो जाएगा y माइनस 10, क्योंकि इसने दिया है इसके पास ऐड हो जाएगा। देन रीचा विल हैव 3 टाइम्स एज मेनी टॉफी ऑफ नैना, नैना का 3 टाइम्स है, यानी इसमें 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। चलिए देखते हैं, तो x प्लस 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 3y माइनस 30 हो जाएगा। 3y को इधर ले आओ तो x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 है माइनस का और प्लस का 10 है, तो x माइनस 3y विल बी इक्वल टू माइनस 20 एंड इट इज योर इक्वेशन सेकेंड। यहां पर जो है ये आपका 10 उधर जाकर के माइनस का होगा तो ये माइनस 40 हो जाएगा, तो ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए इसको, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 80, और ये ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट करना है, ये 2x है माइनस y है इज इक्वल टू 90। चलिए सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, 2x विल बी कैंसल आउट, यहां से माइनस का 5y बच जाएगा, यहां कितना बच जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 170। अब माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, सो y विल बी इक्वल टू 170 डिवाइडेड बाई 5, 5 से इसको डिवाइड कर दिए, 5 3 जा 15, 2 बच गया और 5 4 जा, तो y इज इक्वल टू हो गया 34। Put the value of y in equation first. You can write here, put the value of y in equation first. First में रख दीजिए, ये है फर्स्ट इक्वेशन, so 2x minus 34 is equal to 90, so 2x will be equal to 90 plus 34 हो जाएगा, so 2x कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और 9 and 3 12 हो जाएगा, और x is equal to 124 डिवाइडेड बाई 2
2 6 जा एंड 2 जा यानी कि 62। सो इसमें टॉफिस किसके पास कितना रहेगी, रीचा के पास कितनी आ गई, रीचा के पास जो आ गई वो x थी और x कितना है हमारे पास, x है 62। और दूसरी है नैना, तो नैना के पास कितनी आ गई है, नैना के पास 34 है। इतनी टॉफिस। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से कर लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए एग्जाम्पल नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर स्टैंडिंग इन रोज, ये रोज में खड़े हैं। इफ वी रिमूव 4 स्टूडेंट फ्रॉम ईच रो then we get one extra row, but if 4 more students stand in each row then 2 less rows form। चलिए देखते हैं, पहले इसमें ले लेते हैं हम लोग। The students of a class are standing in a row. Let number of row is equal to x and number of student in one row is equal to y। So total number जो हो जाएंगे वो x y हो जाएंगे। So total student कितना हो जाएगा, x y हो जाएगा। अब देखो क्या हो रहा है इसमें, फर्स्ट इफ वी रिमूव 4 स्टूडेंट फ्रॉम ईच रो, हर एक रो से अगर 4 स्टूडेंट्स को रिमूव कर देते हैं, यानी टोटल जो था वो तो एक्स वाई था और ये नंबर ऑफ रो है, रो तो वाई है। इफ वी रिमूव 4 स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच रो, हर एक रो से 4 स्टूडेंट्स कम कर दें, यानी कि स्टूडेंट्स में कम हो जाएगा, यानी कि y माइनस 4 हो जाएगा ये, ठीक है, ईच रो। देन वी गेट 1 एक्स्ट्रा रो, यानी रो अब एक एक्स्ट्रा हो गई, यानी x प्लस 1 रो हो गई। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x इंटू वाई हो जाएगा, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स वाई हो गया, और माइनस का 4x हो जाएगा, और प्लस का y हो जाएगा, और माइनस का 4 हो जाएगा। एक्स वाई कैंसल आउट, सबको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 4x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो गई है। यहाँ क्वेश्चन में कुछ गलती है बच्चों, यहाँ 1 की जगह 4 लिखा हुआ है, इसको सही कर लेंगे आप लोग। तो यहाँ पर जो है ये 1 की जगह 4 हो जाएगा। अब इसको सही कर लीजिए। तो ये हो गया एक्स वाई इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स वाई आएगा, माइनस का 4x हो जाएगा, प्लस का 4y हो जाएगा, और माइनस का ये 16 हो जाएगा। चलिए एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, 4x इधर जाएगा, 4x हो जाएगा, माइनस का 4y हो जाएगा इज इक्वल टू -16। इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -4 4 जा 16 हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब सेकंड वाले केस में क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे, बट इफ 4 मोर स्टूडेंट्स स्टैंड्स इन ईच रो, अगर हर एक में 4 अधिक आ जाए, यानी कि ये y प्लस 4 हो जाए, हर एक में खड़े हो जाए, तो नंबर ऑफ रो जो है 2 लेस हो जाती है, यानी x माइनस 2 हो जाती है, ये x माइनस 2 हो जाएगी। और ये टोटल तो एक्स वाई थी ही, तो यहाँ एक्स वाई इज इक्वल टू कितना, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक्स वाई हो जाएगा, और प्लस का 4x हो जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा, और -8 हो जाएगा। एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर ले आइए, माइनस का 4x हो जाएगा, प्लस का 2y हो जाएगा इज इक्वल टू -8 हो जाएगा। इसमें -2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 2x माइनस वाई हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 से डिवाइड किया लेकिन -2 से करा डिवाइड। ये इक्वेशन सेकंड हो गई है। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, तो फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दीजिए, यानी फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को माइनस, या सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए। चलिए सेकंड में से फर्स्ट कर लीजिए, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, और यहाँ कितना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 4 है, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा, सो x इक्वल टू 8। द वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए इसको, ये हमारी फर्स्ट है, तो 8 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 4 है,
तो माइनस वाई इजकल टू -4 -8 हो जाएगा। तो माइनस वाई इजकल टू माइनस का 12, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो वाई इजकल टू 12 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई, नंबर ऑफ रोज ये कितना हो गया, नंबर ऑफ रोज x था, दैट मीन्स की 8 हो गई, और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन वन रो कितने हो जाएंगे, ये 12 हो जाएगा। तो ये ही दोनों हमारे पास आंसर है, ये इजीली है, आप लोग कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं एग्जांपल नंबर 12 की तरफ। 10 years ago, the sum of age of Sunil and Vinay was 1/3 the age of their father. If Sunil is 2 years younger than Vinay, and sum of their current age is 14 less than their father's age, find the present age of Vinay, Sunil and their father. तो ये सारे हमें निकालने हैं, चलो इसको देखना चालू करते हैं कैसे निकलेगा। नाउ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रह गया इसमें है, सो यू कैन राइट यहाँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये जो है x इंटू वाई हो जाएगा। तो x कितना आया हमारे पास 8 आया है, और ये y जो है 12 आया है, ये आ जाएगा 96, ये आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं जरा इस क्वेश्चन पे, हम लोग चल रहे थे इसी क्वेश्चन पे। लेट द विनय परसेंटेज इज इक्वल टू x ईयर्स, और कौन बच गया है, विनय के बाद गया सुनील, सुनील प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x माइनस 2 ईयर्स, और कौन बच गया, क्योंकि फादर की बात आ गई तो फादर प्रेजेंट एज देख लो, फादर प्रेजेंट एज y ईयर्स, ये हमने ले लिया इसके। अब हम चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा था, चलते हैं 10 years ago, दोनों की एज कितनी हो जाएगी, 10 years ago x माइनस 10 हो जाएगी इसकी, और दूसरे की जो हो जाएगी वो x माइनस 2 तो थी पहले से, और 10 और लेस हो जाएगी। लेकिन ये जो है फादर की जो एज है y माइनस 10 ये भी हो जाएगी, लेकिन ये कह रहा है 1/3, तो 1/3 कर देंगे, इसको सही कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा, ये x माइनस 10 और प्लस ये x माइनस 12 हो जाएगा इज इक्वल टू 1/3 ऑफ y माइनस 10, ये हो जाएगा 2x और माइनस का 12 ये 22 हो जाएगा, और प्लस का 1/नहीं इक्वल टू है यहाँ पे 1/3 ऑफ y माइनस 10, 3 की इधर मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6 हो जाएगा, और माइनस 6 हो जाएगा, और यहाँ पे y माइनस 10 हो गया। अब इसको इधर उधर ले लेते हैं, तो 6x माइनस वाई इजकल टू 66 माइनस 10 हो जाएगा, इसमें से कम कर दीजिए, 10 कम करेंगे तो ये 56 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। नेक्स्ट पोर्शन है हमारा, यहां से स्टार्ट होता है, द सम ऑफ देयर करंट एज इज 14 लेस देन द फादर्स एज। तो करंट एज में ले लेते हैं, तो एक का तो x है, दूसरे का x माइनस 2 है, और ये क्या हो गया, y में से 14 लेस हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, ये 2x माइनस 2 इज इक्वल टू y माइनस 14 हो जाएगा। इसको इधर उधर कर लेते हैं, चलो यहां देख लेते हैं जरा कितना हो जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 प्लस का हो जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा। सो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का ये 12 हो जाएगा। दैट इज द इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पे क्या करना है, हम लोगों को इक्वेशन को माइनस कर देनी है, यानी कि फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दीजिए। फर्स्ट माइनस सेकंड कर रहा हूं, तो फर्स्ट कितनी है, 6x माइनस वाई इजिकल टू 56 है, और नीचे है 2x माइनस वाई इजिकल टू माइनस का 12। इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो वाई वाई तो कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ पे बच जाएगा 4x, और यहाँ देखते हैं जरा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो 6 and 2 8 हो जाएगा, और ये 5 and 1 6 हो जाएगा, 68 हो गया। तो x की वैल्यू निकल जाएगी, x इक्वल टू हो जाएगा 68 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 1 जा 4 and 4 7 जा 28, तो x will be equal to 17. Now put the value of x, put the value of x इन इक्वेशन। फर्स्ट में रख देते हैं, चाहे सेकंड में रख दो, मर्जी है आपकी। तो मैं फर्स्ट में रखना चाहूंगा, फर्स्ट में रख दीजिए। कितना है, ये हो जाएगा 6 इंटू 17 माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है, 56 है। ये हो जाएगा 6 7 जा 42 और 6 1 जा 6 and 4 10 हो जाएगा। माइनस का ये हो गया y इज इक्वल टू 56, इधर उधर कर लेते हैं, तो y इधर भेज दे रहे हैं, इसको इधर ले आओ, 102 माइनस 56, जरा माइनस कर दीजिए, तो 12 माइनस 6 दैट इज 2, और यहाँ बच गया 9, 9 माइनस 5 दैट इज 4, 42। अब इसमें सबकी एज निकल गई। कौन कौन था x, देखो विनय एज निकाल लेते हैं। विनय एज, प्रेजेंट एज ले रहे हैं, ये प्रेजेंट विनय की कितनी आ गई, ये x थी यानी 17 ईयर्स। अब इसके बाद कौन है, सुनील, सुनील एज ले लेते हैं, तो 17 में से 2 माइनस कर देंगे यानी 15 ईयर्स हो जाएगा। और फादर से एज निकाल लीजिए, ये y है यानी 42 ईयर्स। यही तीनों आंसर हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से हो जाएगा, इसलिए आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये जरा एज जो है फादर वाली थोड़ी सही कर लीजिए आप लोग। ये जो है ना 12 माइनस 6 यानी 6 ही आना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 आएगा, तो यहाँ पर भी आपको 6 ही लिखना पड़ेगा, इस जगह भी 6 ही रहेगा ये, तो इसको सही कर लेंगे आप लोग। ठीक है इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम लोग। ये है एग्जाम्पल 13, 7 टाइम्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर is equal to 4 times the number formed by reversing the digit. The sum of 2 digit is 3. Find the numbers. चलिए नंबर्स लेने चालू करेंगे हम। कि चलिए पहले कर लेते हैं, let the digit at the unit place be, यहाँ पे y लीजिए इसको, and that of the 10th place be x, ये x ले लीजिए। 10th प्लेस को हमने x ले लिया, then the number is 10x plus, 10th वाले पे x आएगा तभी 10x plus y लिखा जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं, 7 टाइम्स ऑफ द 2 digit number is 4 times the number formed by the reversing the digits। इसका मतलब क्या है, पहला है 7 टाइम्स द 2 डिजिट नंबर, तो ये 7 टाइम्स कर दिया, और डिजिट जो होता है 10x plus y होता है, और ये 4 टाइम्स कर रहा है, कब कर रहा है, जब ये चेंज हो जा रहा है, 10y plus x कर दे रहा है। चलिए इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 70 ऑफ x हो जाएगा, 7 ऑफ y हो जाएगा, और ये 40 ऑफ y हो जाएगा, प्लस 4 ऑफ x हो जाएगा। चलिए और सही कर लीजिए इसको, तो ये 70x माइनस का 4x हो जाएगा, प्लस का 7y माइनस 40 ऑफ y इज इक्वल टू 0। अब 70 में से 4 माइनस करेंगे तो 66 बच जाएगा, और यहाँ माइनस का कितना बच जाएगा, ये 33 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0। इसको 33 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब इसमें क्या कहता है, द सम ऑफ 2 डिजिट इज 3, इसका मतलब ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 गिवन है। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गई। अब ऐड करना है, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। चलिए ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 3 है। जब ऐड करेंगे तो ये y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3x इक्वल टू 3 आ जाएगा। चलिए देखते हैं इसको निकाल करके, सो x इक्वल टू 3/3 हो जाएगा, कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा, सो x इक्वल टू 1 हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। चलिए, तो 2 इंटू 1 आ जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो 2 इज इक्वल टू वाई यानी y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। सो डिजिट निकाल सकते हैं अब हम लोग। अब डिजिट निकाल दीजिए, डिजिट कितना हो जाएगा, 10x प्लस वाई होता है,
सो 10 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई है 1 आ गई, y की है 2, तो ये आ जाएगा 10 प्लस 2 दैट इज द 12 इज योर आंसर। एग्जाम्पल 14 है ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स इन द गिवन, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन आपको सेकंड गिवन है। करना क्या है, पहले एक्स इसके इक्वल कर लेते हैं, यानी इसमें तो इक्वेशन में 1 की मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करके इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, इसमें पहले 2 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 8y इज इक्वल टू माइनस का 14, और ये एस टी रहने दीजिए 2x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 8, दोनों को माइनस कर दीजिए तो साइन चेंज होंगे, इसका भी चेंज होगा, इसका भी चेंज हो जाएगा, तो 2x विल बी कैंसल आउट। अब यहां से कितना बच जाएगा, माइनस का 3y बच जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस का बचेगा जो भी, ये 6 बच जाएगा, यहाँ से माइनस माइनस विल बी कैंसल आउट, सो y इज इक्वल टू कितना हो गया 6/3, तो ये 2 हो जाएगा, सो y इज इक्वल टू 2। द वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, सो 2x है माइनस 5y की वैल्यू 2 हो गई इज इक्वल टू माइनस 8, सो 2x माइनस माइनस 10 हो जाएगा, ये माइनस 8 हो गया, सो 2x इक्वल टू 10 माइनस 8, सो 2x इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया, इससे x की वैल्यू निकल जाएगी, कितनी आ जाएगी 2/2, सो x विल बी 1, तो यू कैन से x की वैल्यू तो 1 आ गई और y की वैल्यू कितनी आई है 2 आ गई, और यहीं पर आपका आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 15 है ये, सॉल्व द गिवन इक्वेशन, ये इक्वेशन आपको फर्स्ट गिवन है और ये सेकंड है। वैसे तो इसको मल्टीप्लाई जो करना पड़ेगा तो बहुत ज्यादा नंबर दिखाई दे रहे हैं मल्टीप्लाई करते हुए, ऐसा करते हैं पहले इसको सिंपल कर लेते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा 41 और ये हो जाएगा 17 है, कितना आ जाएगा ये एक्स कर देते हैं, 7 और 1 8 हो जाएगा, तो इसको लिख लीजिए 8 और 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा 58 ऑफ एक्स हो गया, और यहाँ माइनस का देख लीजिए 7 एंड 1 8 हो जाएगा और 4 एंड 1 5, ये भी 58 हो गया लेकिन y हो गया, और यहाँ से 9 और 5 14 और यहाँ 17 आ जाएगा, ये 17 आ गया, तो यहाँ से 58 तो कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस वाई बच गया और 174 हो गया, सो x माइनस वाई इक्वल टू 174 डिवाइड बाई 58, ये 3 टाइम्स जाएगा आपका, इजीली देख लो, 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15 एंड 2 17, सही आ रहा है ये, तो x माइनस वाई इक्वल टू आ गया 3, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब क्या करना है, इसी को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस को जो है सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 41 ऑफ एक्स माइनस है 17 ऑफ वाई इज इक्वल टू 99, और यहाँ कितना है 17 ऑफ एक्स माइनस 41 ऑफ वाई इज इक्वल टू 75, जरा सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, चलिए यहाँ 11 माइनस 7 कितना बच जाएगा 4, और यहाँ बचा 3 माइनस 1 दैट इज द 2 एक्स हो जाएगा, और यहाँ प्लस का आ जाएगा, और ये कितना बच जाएगा 7, यानी कि 11 माइनस 7 दैट इज द 4, यहाँ बच गया 3 माइनस 1 दैट इज द 2, यहाँ पर भी माइनस कर लीजिए, तो 9 5 4 बच जाएगा, और यहाँ से 9 इसमें 2 बच जाएगा, दैट मीन्स कि 24 यहाँ से कॉमन आ गया, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 24, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24/24, कैंसिल होके 1 हो जाएगा, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 1, ये इक्वेशन नंबर, ये हमारी इक्वेशन थर्ड आई थी बच्चों, ध्यान रखना, ये इक्वेशन फोर्थ आ गई। अब एडिंग फर्स्ट में 3 एंड फोर्थ इक्वेशन, ये थर्ड लेनी है और फोर्थ इक्वेशन ले रहे हैं, चलिए अब इजी हो गया, देखो तो ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है और x प्लस वाई इक्वल टू 1 है,
इसको ऐड कर देंगे तो y y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/2 कट जाएगा, यहाँ 2 आ गया तो x की वैल्यू 2 हो गई। द वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड में रखिए, थर्ड में रख देते हैं। तो x की वैल्यू 2 है, माइनस y इज इक्वल टू 3 हो गया, तो माइनस y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 हो गया, सो माइनस y इज इक्वल टू 1 बच गया, सो y इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे आंसर एक जगह लिख दिया, x का 2 हो गया और y कितनी आ गई -1 हो गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, एग्जाम्पल 16 है ये। इन अ ट्रायंगल है ये ट्रायंगल आपका है ABC, एंगल ए एक्स है, एंगल बी 3x है, एंगल सी y है, और इफ 3y माइनस 5x इज 30। चलिए एक इक्वेशन तो दे दी है इन्होंने, 3y माइनस 5x इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, एंगल सम 180 होता है ट्रायंगल का, तो A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे एंगल भी शो कर दीजिए, ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये सब हो गया। एंगल ए कितना दिया हुआ है, यहाँ देखिए x दिया हुआ है, एंगल बी कितना दिया है 3x दिया हुआ है, एंगल सी कितना है y है, सो यू कैन राइट y इज इक्वल टू 180। कितना हो जाएगा, ये तो 4x हो जाएगा प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये 30 डिग्री है। ये इक्वेशन आ गई सेकेंड। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है ये आपको देखना है। एक काम करते हैं, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसको। चलिए देखिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3y और ये 540 हो जाएगा। इसको एज इट इज लिखिए, प्लस का 3y है और माइनस का 5x है, इस इक्वल टू कितना है 30 डिग्री। जब इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन इसके चेंज हो जाएंगे, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान देखिए तो 17 ऑफ x आ जाएगा और ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, और यहाँ क्या बचा देख लेते हैं जरा, 0 हो गया और यहाँ से 1 हो गया और यहाँ से 5 आ जाएगा। तो x विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 510 डिवाइडेड बाई 70, काट देंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा, यानी x की वैल्यू जो है वो 30 डिग्री आ गई। नाउ पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ द वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, कितना हो जाएगा 3y है माइनस का 5x कितना आया 30 आया है, इज इक्वल टू 30 डिग्री है। सो 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तो 30 है और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आएगा, इधर आके प्लस का हो जाएगा 150। सो 3y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री को क्या करेंगे, अब ये y निकालना है, तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 3 6 जा यानी 60 डिग्री आ गया, तो y इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। अब सारे एंगल निकाल लेते हैं। एंगल a कितना आ गया है, ये तो x ही था, x कितना है हमारे पास 30 डिग्री आ गया। एंगल b देखो कितना था, ये था 3x, तो 3x में मतलब 3 इंटू 30, ये आ गया 90 डिग्री। और एंगल c कितना था, y था, एंगल सी भी आपका निकला हुआ है कितना है 60 डिग्री। तो ये तीनों के तीनों एंगल निकल गए ट्रायंगल के, तो यू कैन राइट द ऑल द एंगल्स। चलिए इसके बाद 17 एग्जांपल चल रहा है। अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। इन 13 आवर्स it can go 40 kilometer up stream and 55 kilometer down stream. Determine the speed of the stream and that of the boat of in still waters. Yes, first of all, let the speed of boat downstream in the direction of flow water, that is the x kilometer per hour, and let the speed of boat upstream opposite to the direction of flow of water, that is the y kilometer per hour. अब इसके अकॉर्डिंग जो है हमें इक्वेशन बनानी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो दैट इज द बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, दैट मीन्स 30 अपॉन y प्लस 44 kilometer downwards, so 44 upon x will be equal to time is given as 10 hours. So it is the 10 and it is your equation first. Now in second, 40 kilometer
अप स्ट्रीम, तो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम के लिए y आएगा, सो इट इज योर 40 अपॉन y प्लस 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, सो 55 अपॉन x हो जाएगा। और ये टाइम कितना है हमारे पास, टाइम इज गिवन एज 13, सो इक्वेशन ये सेकंड हो गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, चलिए सॉल्व करके देखते हैं कैसे हो जाएगा। इस इक्वेशन को हम करते हैं, इसको पहले y इक्वल कर लेते हैं, तो y के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो y कैंसिल हो जाएगा। चलिए देखते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 3 जा 12, तो 120 अपॉन y प्लस 4 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 4 4 जा 16, 4 जा 16 एंड 1 17 अपॉन x, इसमें 4 से करेंगे तो 40 हो जाएगा। ऐसे यहाँ 3 से कर दीजिए तो 120 अपॉन y हो जाएगा और प्लस यहाँ 3 से कर दीजिए, 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15 एंड 1 16 अपॉन x, और यहाँ करेंगे तो 13 3 जा 39। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करने में ये साइन चेंज हो जाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ देखना है 176 में से 165 गया, कितना बचता है, तो ये बच जाएगा 6 माइनस 5 दैट इज द 1, और 7 माइनस 6 ये भी 1 आ गया, ये तो कैंसिल हो जाएगा, अपॉन x हो गया। और यहाँ कितना बच जाएगा, अब इसको माइनस कर लेते हैं, माइनस करने पे यहाँ 40 यहाँ 39 है तो एक ही बचेगा, तो इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई। ये अब x की वैल्यू किसी एक में पुट कर दीजिए, द वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, ये है 30 अपॉन y और प्लस का 44 है अपॉन x की वैल्यू कितनी आई है, 11 आ गई है, इज इक्वल टू 10, तो ये काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 30 अपॉन y इज इक्वल टू 10 माइनस 4, तो 30 अपॉन y इज इक्वल टू 6 बच जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो 6y इज इक्वल टू आ गया 30, सो y इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 6, 6 5 जा 30, सो y इज इक्वल टू 5 आ गया। दोनों के आंसर आ चुके हैं, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई है वो भी लिख लेना है, x इज इक्वल टू 11 किलोमीटर पर आवर एंड y इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। यही दोनों आंसर हैं जो हमने लेट किए थे। चलिए आगे देखते हैं जरा हम लोग, ये आ गई है एक्सरसाइज नंबर 2 जिसका आप लोग को इंतजार था। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, चेक वेदर x द वैल्यू ऑफ x एंड y इन गिवन a एंड b आर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो पहले हम फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट लेके चल रहे हैं, a पार्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट है, पुट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7, तो 7 इक्वल टू 7। नाउ पुट x इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट रख के देखिए, तो माइनस का 1 है, प्लस का 3 है, इक्वल टू 7, so 2 is equal to 7, but 2 does not is equal to 7, so A is the solution of the given equation। ये आपका आंसर होगा। चलिए ऐसे ही करके देखते हैं और भी पार्ट्स इसके दिए हुए, ये आपका और दिया हुआ है, चेक वेदर द वैल्यू ऑफ x एंड y A1। तो सबसे पहले हम ये रखेंगे, पुट है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, पुट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट रख दीजिए, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा और 5 इंटू 5 आ जाएगा, y की वैल्यू 5 है, इक्वल टू 13, तो ये हो गया 4 प्लस 25 इज इक्वल टू 13, इट इज 29 इक्वल टू 13, but 29 does not equal to 13. Now once again put x equal to -1
and y is equal to 3 in equation फर्स्ट में रख दीजिए, तो 2 into -1 plus 5 into 3 is equal to 13। ये माइनस का 2 हो गया, 5 3 जा 15 हो गया, is equal to 13। सो यहाँ आ गया 13 और ये भी 13 है। सो क्या हो गया, सो B is the solution of the given इक्वेशन। सो यही आंसर है आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जरा, थर्ड पार्ट है इसका। ये इक्वेशन फर्स्ट है, फिर से पुट कर दीजिए, पुट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख रहे हैं। चलिए रख के देखिए, तो 2 into 2 हो जाएगा, -3 into y कितना है, 5 is equal to -11। तो 4 minus 15 is equal to -11, तो -11 is equal to -11। once again put x equal to -1 and y is equal to 3 in equation फर्स्ट में रखिए जरा। सो 2 into -1 है, माइनस का 3 into y कितना है, y is equal to 3 है, is equal to -11 रख दीजिए, माइनस का 2 हो गया, माइनस का 9 हो गया और ये माइनस का 11 हो गया, तो -11 is equal to -11। सो A and B both are solution of given equations। तो चलिए ये आंसर हो गया इसका। अब एक और लास्ट में भी जा रहा है आपका, ये फोर्थ पार्ट है आपका, इसी का देखते हैं क्या फोर्थ पार्ट में बताया गया है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, तो पुट करना चाह रहे हैं, पुट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट रख दीजिए। तो 5 into x 2 है, प्लस का 3y कितना है, 5 इक्वल टू 4, इट इज 10 और 5 3 जा 15 इक्वल टू 4, तो ये हो गया 25 इक्वल टू 4, बट 25 डज नॉट इक्वल टू 4। अब यहाँ पे क्या करना है, पुट x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट रख दीजिए जरा। तो ये हो गया 5 into -1 प्लस का 3 into 3 इज इक्वल टू 4, तो ये माइनस का 5 हो गया, प्लस का 9 हो गया, इक्वल टू 4, सो 4 इक्वल टू 4। सो B is the solution of given equation। तो ये आपका आंसर हो गया। मेरे ख्याल से इसके सारे पार्ट्स हो चुके हैं आप लोगों का। अब इसके नीचे एक लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, सब्सक्राइब कर लेंगे इस बटन को दबा करके, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और मेरी वीडियो को कम से कम लाइक करेंगे जिससे मुझे पता चलता रहे कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है, और बेल आइकन को भी दबा लेंगे, जैसे ही मैं इस वीडियो को डालूंगा आप लोगों के पास नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ।